मुख्यमंत्री शुभेंदु ने हिंदुओं को दिया बड़ा तोहफा। बंगाल में रथ यात्रा कमेटियों को सरकार ने दिए 5-5 लाख रुपए। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ हुआ केस दर्ज, क्या होंगे गिरफ्तार? पश्चिम बंगाल सरकार ने अब रथ यात्रा आयोजक समितियों को ऐतिहासिक समर्थन दिया है और लगभग 60 रथ यात्रा समितियों को शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा 5-5 लाख रुपए का अनुदान पूरे राज्य में सेवा शिविरों की व्यवस्था भी की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ इन समितियों को 5-5 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। देखिए, एक तरफ जहां हिंदुओं के लिए लगातार एक के बाद एक बड़ा फैसला राज्य की शुभेंदु अधिकारी की सरकार ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की भी तुष्टीकरण की तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि कैसे ममता बनर्जी मदरसों में दिया करती थी काफी ज्यादा फंड, और वहीं शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जहां एक तरफ मदरसों से फंड की कटौती कर दी है पहले ही, तो अब जहां यानी कि जिस राज्य में ज्यादातर हिंदुओं की आबादी रहती है, पर इसके बावजूद भी हिंदू त्योहारों पर उन्हें किसी भी तरीके की सहायता ममता बनर्जी सरकार के द्वारा नहीं दी जाती थी। पर आज बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद चीजें साफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि शुभेंदु अधिकारी जैसे ही चुनाव जीते थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मुझे जिन्होंने वोट दिया है और जिन हिंदुओं ने जिताया है, मैं उनके लिए जरूर काम करूंगा। और उसी पद्धति पे अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां रथ समितियों के लिए 5-5 लाख रुपए का अनुदान देने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সব সময় বলেন বিকাশ भी होगा বিরাসত भी होगा, অর্থাৎ আমাদের যে উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখা, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এটাও সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে এই পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক রাজধানী ভারতবর্ষের একটা সময় ছিল তা নয়, পশ্চিমবঙ্গ আধ্যাত্মিক আন্দোলনের একটি বড় ভূমি। এখানেই ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব সহ প্রভু শ্রী চৈতন্য দেব, তারা এখানে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা করেছেন। এই ভূমিতে স্বামী প্রণবানন্দ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, জগৎজননী মা শারদামণি থেকে রানী রাসমণি, এদের এই পুণ্যভূমি, এই ভূমিতে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনের একটি অন্য বড় উৎসব হলো রথযাত্রা। এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এমন এমন উৎসব এই রাজ্যে রয়েছে 50-100 বছর নয়, শত শত বছরের পুরনো। মহিষাদলের রথযাত্রা বলুন, মাহেশের রথযাত্রা বলুন, এমন অনেক রথযাত্রা রয়েছে, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, দার্জিলিং থেকে দীঘা, যারা আমাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা, আধ্যাত্মিকতা এবং আনন্দের মিলন ক্ষেত্রের রূপ নেয়। এতদিন সরকারি স্তরে এই রথযাত্রাগুলিতে কয়েকজন ট্রাফিক পুলিশ পাঠিয়েই সরকার তার দায়িত্ব শেষ করতেন, কিন্তু বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্লোগান উন্নয়ন এবং ঐতিহ্য, দুটোকে সামনে রেখে এগোতে চায়। তাই আমরা এবারের রথযাত্রায় সরকারিভাবে আমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাথে আমার হাতে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর রয়েছে। এই দপ্তরের মাধ্যমে আমরা পশ্চিমবঙ্গের 75টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার যে মেলা হয়, মিলন উৎসব হয়, সেখানে আমরা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় এই সেবা কেন্দ্রগুলিতে পুণ্যার্থী এবং যে সমস্ত দর্শকরা আসবেন ভক্তমণ্ডলীকে ন্যূনতম পরিষেবা প্রদান করা হবে রাজ্যের ৭৫টি জায়গায়। এতে পুরসভা, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট রথযাত্রা কমিটিকে যুক্ত করে আমরা করছি। আমরা যে সমস্ত রথযাত্রাগুলি দশকের পর দশক ধরে হয়, প্রাথমিকভাবে এমন প্রায় ৬০টি রথযাত্রা কমিটিকে আমরা ৫ লক্ষ টাকা করে সরকারি সহায়তা আজকে প্রদান করব। এটি আমাদের অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে প্রথম বছর তালিকা তৈরিতে কোনো যদি ত্রুটি থেকে থাকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আগামী দিনে আপনারা যদি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক তথা জেলা শাসকদেরকে জানান, আগামী দিনে আমরা ত্রুটিপূর্ণ তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করব। কিন্তু এটি একটি শুরু, এটা অনেক দূর যাবে। আজকে যে বৃক্ষটি রোপিত হলো রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে, আগামী দিনে সেটা ময়ূরীয় পরিণত হবে। এটাকে একটি ঐতিহ্য এবং উৎসবে আমরা পরিণত করার চেষ্টা করব ধীরে ধীরে। শতাধিক প্রাচীন এই রথযাত্রা কমিটি বাগবাজার মহাপ্রভু মন্দির পরিচালন সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হল আর্থিক সাহায্য রাজ্য সরকারের তরফে। নবান্ন সভাঘরে চলছে রাজ্য সরকারের তরফে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিগুলির হাতে আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত চেক প্রদান অনুষ্ঠান। শতবর্ষ প্রাচীন বাগবাজার মহাপ্রভু মন্দির পরিচালন সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এই চেক। এরপর ইসকন কলকাতা প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে ৫ লক্ষ টাকার চেক। মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং সুমনা সরকার তুলে দিচ্ছেন এই চেক। এরপর শ্রী জগন্নাথ সেবা সমিতির প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। পদ্মশ্রী শ্রী কার্তিক মহারাজকে অনুরোধ জানাই এগিয়ে আসার জন্য এই চেক তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। এরপর ভারত সেবাশ্রম সংঘ শ্রদ্ধেয় স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজকে অনুরোধ জানাই এই চেক তিনি তুলে দেবেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের হাতে। राज्य सरकार तरफ तुले देওয়া হচ্ছে এই आर्थिक सहायता। और इसी के साथ साथ पूरे राज्य में सेवा शिविरों की व्यवस्था भी शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले पर अब टीएमसी के नेताओं की भी बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। और सबसे पहले हम आपके लिए सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी के नेता सौगात रॉय। सर, रथ यात्री जो कमेटी है जगन्नाथ रथ यात्री 60 कमेटी को सरकार 5 लाख रुपया दिया है सर। हाँ, मतलब 300 लाख मतलब 3 करोड़ रुपया और 15 करोड़ वो खर्चा करेंगे। इतना दिन 15 करोड़ खर्चा करेंगे तारकेश्वर के लिए। वो पहले ही जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा को अनुदान देती थी
तब इसको बीजेपी क्रिटिसाइज करते थे। अभी वही रास्ता पे वो चल रहे हैं और 15 कोटि वो बोल रहे हैं कि तारकेश्वर तीर्थ यात्रियों के लिए दिया जाएगा। ये भी तो अजीब चीज है। इतना दिन तारकेश्वर में तीर्थयात्री कोई सरकार का सहारा बिना ये जाते आते हैं भक्ति से, श्रद्धा से, तो इसको जरूरत नहीं था। ये रुपया गरीब लोगों का कोई काम में नहीं आएगा। सौगात रॉय का बयान आपने सुना और आज वो किस तरीके से गरीब आदमी का नाम लेकर कह रहे हैं कि इनके लिए फायदा नहीं होगा, इन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। ये वही सौगात रॉय हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की सरकार, यानी कि जब टीएमसी की सरकार रही तो इन्हीं टीएमसी के नेताओं ने कई सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति की, क्योंकि इसी तरीके के सवाल आज बंगाल को लेकर उठते हैं। जब ममता बनर्जी की स्कीम्स को देखा जाता है, योजनाओं को देखा जाता है, तो ये समझ आता है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम किया। पर शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा ये जो रथ कमेटियों के लिए 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है, जिस पर किया घोष ने आज बड़ी बात कही है और सरकार का धन्यवाद दिया है। और इसी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी का जो घोटाला सामने आया है, उस पर भी अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं किया घोष। कमेटी को 5 लाख रुपया दिया है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले सरकार जो अपने तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त थी, उन्होंने रथ यात्रा जैसे इतना बड़ा महोत्सव के लिए कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु से भी उन्होंने खिलवाड़ किया था। जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर बनाने के आड़ में वो सरकार के पैसों से वो मंदिर बनाया था और नाम दे दिया था जगन्नाथ कल्चरल सेंटर। तो जो महाप्रभु के साथ खिलवाड़ कर सकते लेकिन रथ के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, उससे हम लोग बहुत आगे आके पूरा उल्टा आके हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब रथ यात्रा की जो कमेटियां हैं 60 कमेटी को 5 लाख रुपया दे रही है। ये जगन्नाथ भक्त होने के नाते भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक और एफआईआर सेवाश्रय जो हेल्थ स्कीम था उसको लेकर के, उसमें जो इरेगुलरिटीज सामने आई है उसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। ये सेवाश्रय का नाम बदल के चूरीश्रय होना चाहिए था। यहाँ पर इतना चोरी हुआ है, इतना घोटाले हुआ है, मतलब सेवा भावना के नाम के आड़ में लोगों को ठगा गया है। सरकार की जो दवाई है वो छुपा के वो प्राइवेट में बेचा जा रहा था। एक महिला का पैर, उनका पैर चला गया। यहाँ पर इंटर्न, जो डॉक्टर इंटर्न थे, उनसे झूठ कहा गया कि उनको अच्छी तनख्वाह देके उनको रखेंगे। मतलब तृणमूल माने चोर, ये कितने बार तृणमूल वाले खुद प्रमाण करेंगे। बुआ भतीजे का पार्टी में सिर्फ चोरी, सिर्फ घोटाले, सिर्फ लोगों से लूटना। तो ये एक एफआईआर की, उनके ऊपर 10 एफआईआर होना चाहिए और इनको अभिषेक बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, ये डायमंड हार्बर मॉडल था क्या, जिनके बारे में अभिषेक बनर्जी बहुत लंबे चौड़े वो लेक्चर देते थे। तो डायमंड हार्बर मॉडल यानी ही चोरी, डायमंड हार्बर मॉडल मतलब वहां पर घोटाला, डायमंड हार्बर मॉडल मतलब लोगों को डराना, धमकाना और उनको पुष्पा मॉडल जैसा था, झुकेगा नहीं वैसा मॉडल। तो देखिए किया घोष का आपने बयान सुना और जिस तरीके से अगर यहाँ पर हम बात करें अभिषेक बनर्जी की, तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला किया घोष ने बोला। और मामला ये है कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब सेवाश्रय स्वास्थ्य शिविर ने अब कई घोटालों को लेकर चिकित्सा लापरवाही मामले में अब एफआईआर दर्ज करा दी है। और इसी के साथ साथ महेश तलाकी, मालती विश्वास ने आरोप लगाया है कि घुटने के दर्द के इलाज के दौरान लापरवाही के कारण उनकी दाहिनी टांग काटनी पड़ी। पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। और अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि महिला ने आरोप लगाया है कि सेवाश्रय स्वास्थ्य शिविर में इलाज के दौरान हुई लापरवाही के कारण
कारण उनका पैर काटना पड़ा है और किस तरीके से दवाइयों में भी हेर फेर हुई है। तो देखिए, अभिषेक बैनर्जी हो या टीएमसी के तमाम और नेता, जिनके एक के बाद एक भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जगन्नाथ यात्रा को लेकर और इन यात्राओं को लेकर, इन रथ समितियों को लेकर, जिस पर सरकार के द्वारा एक के बाद एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, और इस पर राहुल सिन्हा का भी बयान सामने आया है। और राहुल सिन्हा ने अब सरकार का धन्यवाद किया है और कहा है कि शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा जो आज रथ कमेटी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, समितियों को पैसे दिए जा रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक फैसला शुभेंदु अधिकारी सरकार का है। जरा सुनिए ये बयान भी राहुल सिन्हा का। नहीं, तो देखिए, बहुत एक हिस्टोरिकल डिसीजन बीजेपी सरकार ने लिया और 60 रथ यात्रा का कमेटी को सहायता देने का जो ऐलान सरकार ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, एकदम अभूतपूर्व है। और इसमें क्या होगा, धर्मीय भाव और भी जागरूक होगा और जगन्नाथ देव का कृपा पूरा बंगाल में, बंगाल का जनता के ऊपर पड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये विश्वास लेके सरकार ने इस काम किया, इससे बंगाल आगे ही बढ़ेगा। अभिषेक बनर्जी। तो देखिए, बीजेपी के नेता लगातार राज्य की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले का अब धन्यवाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज जो काम हो रहे हैं बंगाल में वो जनता के हित में है, फेवर में है। और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी जैसे नेताओं की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि जब तक इनकी सत्ता थी, दवाइयों से लेकर अस्पतालों में और शिविरों में काफी ज्यादा हेर फेर के मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं। और राज्य में अब जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार है वो पहले ही कह चुकी है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी हो या फिर जनता का हक का पैसा लूटकर खाने वाले लोग हो, हर किसी का हिसाब किया जाएगा। और इसीलिए अब अभिषेक बैनर्जी के मामले पर ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या अभिषेक बैनर्जी इस मामले से बच पाएंगे या फिर हो जाएगी उनकी गिरफ्तारी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।